Hello everyone, hope you all are staying safe and healthy at home. I know it's been a long time since I have uploaded any video. But anyways, today I bring you the one more interesting chapter of class 7 which many of you are asking from a long time, that is acids, bases and salts. So let's have a look what we are going to cover in this chapter. So we will start with the general terms of what are acid, bases and what are indicators. Then we will study about different types of indicators and we will perform certain tests to check whether the given substance is an acid or a base. Then we will move towards the types and groups of acids. Then we will study about bases, what is neutralization, and finally we will end our chapter with the topic salts. So kids, before starting with the general terms, let me ask you a simple question. Are you able to see and name these fruits? Yes, they are tomatoes, oranges and lemons. So my question is, what is common in these fruits? Yes, they all are sour in taste. And what about these substances, baking soda and soap? Yes, they are slippery in touch and bitter in taste. Now let's move to the terms. So by this, can I say that those substances which we categorize as sour in taste, they are acids? Yes, I can. So those substances which taste sour, they are acids, whereas those substances which are bitter in taste and slippery in touch, they are the bases. But kids, there is always a risk if you taste the food item without knowing what it is. हमेशा ऐसे नहीं होता ना कि आप पहले टेस्ट करोगे और तब बताओगे कि ये एसिड है या बेस है. It might be harmful to you also. Okay, so for these indicators, they come into play. So indicators, they are the dye or special chemicals that are used to check whether the given substance it is an acid or a base. And how do they do that? Okay, so they change the color when we add them to the solution of acid or base. We will study about these indicators in our further slides as well. Basically, there are two types of indicators, natural indicators and the synthetic indicators. So let us have a look about the natural indicators. So natural indicators for testing acids and bases are litmus paper or the litmus, it is a natural indicator. चाइना रोज जिसको हम हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं या फिर आप इंग्लिश में इसको हिबिस्कस फ्लावर भी कहते हैं. एंड टर्मेरिक विच इज हल्दी इन हिंदी. It these are the natural indicators, and apart from natural indicators, synthetic indicators, these are those indicators which are made by the human beings themselves, and among them is the phenolphthalein. We will study about it in our further slide. So let's have a look how can we check whether the given substance is an acid or a base using litmus paper test. So before performing this test, let us know what is a litmus. So kids, litmus, it is a natural indicator, and the litmus solution, it is a purple colored dye which is extracted from the plant which is called as the lichen, and basically it is available in the form of these strips which is red and blue in color. And kids, before performing the test of any substance, we should always keep in our mind that the solid substance, they have to be in the form of a solution. किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर जो आप टेस्ट कर रहे हो टू चेक इट्स केमिकल कंपोजिशन की वो एसिड है या बेस है, तो उसको आपको पहले पानी में डिसॉल्व करके उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा. Now let's perform this litmus paper test. Like if I have these two beakers, the solution A and the solution B, but I do not know कि किसमें acid है और किसमें base है. So we can easily detect the chemical composition by using these litmus paper. How do they work?
So I take one red litmus paper and one blue litmus paper, और उनको मैंने अलग अलग बीकर्स में, जिसमें कि दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, उसमें मैंने डिप करा. सो आप यहाँ पर देखो बच्चों की, अगर जो मैंने ये रेड लिटमस पेपर इस वाली सॉल्यूशन में डिप करा, तो आप क्या देख रहे हो? व्हाट आई सेड अर्लियर कि इंडिकेटर्स क्या करते हैं, दे चेंज द कलर. तो यहाँ पर ये रेड लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज करके क्या कर लिया? ब्लू कर दिया. So if the color is changing from red to blue, then it means, or if I say that if the red litmus paper it turns to the blue, then it means that it is basic in nature. ये हमारा बेस है. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्लू लिटमस पेपर मेरा रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका कलर चेंज होके रेड हो गया. सो द लिटमस पेपर इट इज चेंजिंग फ्रॉम ब्लू टू रेड, देन इट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर. तो आप इसको इजीली ऐसे लर्न कर सकते हो कि ये रेड लिटमस पेपर जो है, ये अगर जो किसी भी सॉल्यूशन में चेंज हो रहा है ब्लू में, so if the red litmus paper it is changing to the blue, then it is the basic in nature, the solution is basic in nature. And if the blue litmus paper is changing to red, then it is acidic in nature. On the other hand, अगर जो red litmus paper अपना कोई भी कलर चेंज नहीं करता, अगर जो मैं ये रेड लिटमस पेपर इस वाले बीकर की जगह इस वाले बीकर में डाल दूं, यानी कि ये जो एसिड है इसमें डाल दूं, तो क्या होगा? इसका कलर चेंज नहीं होगा. रेड लिटमस पेपर विल रिमेन रेड इटसेल्फ इन द एसिडिक सॉल्यूशन, एंड द ब्लू लिटमस पेपर विल रिमेन ब्लू इन द बेसिक सॉल्यूशन. तो बच्चों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि लिटमस पेपर को लेकर हम एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ लेट्स परफॉर्म द चाइना रोज टेस्ट. चाइना रोज बच्चों क्या होता है? दिस इज द हिबिस्कस फ्लावर, और इसको हम इंडिकेटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो द चाइना रोज इंडिकेटर क्या होता है? इट इज अ लाइट पिंक सॉल्यूशन which is obtained when we immersed the petals of this hibiscus in warm water for some time. अगर जो कुछ गर्म थोड़ी देर के लिए ये इसके पेटल्स हम गर्म पानी में डिप करके रख दें, तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन दे देगा. एंड देन दिस पिंक कलर सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर. और उसको हम कैसे यूज करते हैं? एसिड और बेस डिटेक्ट करने के लिए. सो लेट्स सी अबाउट दिस. सो व्हेन द चाइना रोज इंडिकेटर, व्हेन इट रिएक्ट्स विद द एसिड्स, तो एसिड है, एसिड या फिर कोई भी मेरा सॉल्यूशन है वो कलरलेस है. ओके, तो ये मैंने पिंक कलर का अपना चाइना रोज इंडिकेटर लेकर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला. तो इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, देन इट विल टर्न इनटू दिस डार्क पिंक कलर और द मजेंटा कलर. ऑन द अदर हैंड, इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक, तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा बच्चों? इट विल चेंज इनटू ग्रीन कलर. ओके, तो अब इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है. चाइना रोज इंडिकेटर से आप कोई भी एक कलरलेस सॉल्यूशन लोगे, उसके अंदर आपने इंडिकेटर की एक या दो ड्रॉप्स डाली, अगर जो पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, देन इट मीन्स इट इज एसिडिक सॉल्यूशन. एंड अगर जो ग्रीन कलर का हो जाएगा, देन इट मीन्स दैट इट इज बेसिक सॉल्यूशन. समझ में आ गया? आगे बढ़े बच्चों. Okay, now to perform the turmeric test, we have to convert this turmeric into the turmeric paper. Okay, now how can we do that? So हमें क्या लेना है? हमें turmeric powder लेना है और इसको हमें थोड़े से पानी में ऐड करना है. Then we have to deposit this paste on the blotting paper, and then we have to dry it. Then we will obtain the turmeric paper. Now how can we use this turmeric paper to check whether the substance is acidic or basic in nature? So kids, this turmeric paper, it will remain yellow in acidic solution, whereas it will convert into red color. It will change into red color in the basic solution. इसका best example बच्चों होता है जब आप स्कूल में जाते हो या घर पर भी, अगर जो आप कुछ खा रहे हो और खाते खाते कोई भी व्हाइट कलर की चीज पे आपकी वेजिटेबल गिर गई, जिसके अंदर जनरली हम लोग हल्दी यूज करते हैं,
ओके, वो गिर जाती है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा जब वॉशिंग पाउडर डालोगे तो व्हाट विल यू सी कि वो रेड कलर का हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है. तो इट शोज अस दैट दिस डिटर्जेंट इज बेसिक इन नेचर. Okay, so this is the best example to know to perform the acid and the basic solution difference. Now let's. Okay, so far we have studied about the natural indicators जो कि हमने पढ़े 3 तरीके के होते हैं. Now let's move to the synthetic indicator, which is the phenolphthalein. So phenolphthalein, it is a synthetic, or we can say it is a man-made indicator. And how does it tell us whether the given solution is acidic or basic in nature? So phenolphthalein, it is generally, or it is colorless in the acidic solution, whereas if the solution is basic, then it will change the color to pink. तो अगर जो pink color phenolphthalein को सॉल्यूशन में डालने के बाद सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन हमारा बेसिक है. और अगर जो सॉल्यूशन पे कोई भी कलर इफेक्ट नहीं आता है, वो कलर लेस ही रहता है फिनोल्फिथैलिन ऐड करने के बाद, इसका मतलब ये है कि द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. अच्छा बच्चों, इसमें एक और बात ध्यान रखने की है कि अगर जो मैंने ये सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन तो पता लगा लिया कि बेसिक सॉल्यूशन है मेरा. ओके, नाउ अगर जो मैं इस वाले सॉल्यूशन में विच हैज बीन टर्न्ड इनटू पिंक कलर बाय द फिनोल्फिथैलिन, अगर जो इसमें मैं एसिड डालती हूँ तो क्या होगा? Yes, this solution, this pink color solution, it will change from pink to colorless, because the this acid, it cancels the effect of the base. Acid जो है overtake कर लेगा base को और वो इसके color effect को cancel कर देगा. So this pink color solution will again become colorless if we add acid into this. Now let's move further and let's see what we have in our next slide. So now kids, let's study about the types of acids. तो अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि हमने पहले indicators के लिए पढ़ा and now we are studying about the acids and bases. So kids, we have done this because it is very important to know whether we are studying about, we are performing the test on an acid or on a base. अगर जो हमें यही नहीं पता होगा कि ये acid है या base है, तो हम उस पर test कैसे perform करेंगे? So that is why we have studied about indicators earlier than this. So now let's see the types of acids. Basically, there are two types of acids, the mineral acids, and the second category is that of the organic acids. So let's see what are mineral acids. So mineral acids, they are the man-made acids, and we also call them as the laboratory acids because they are used in laboratories for the experiments. And kids, these are very strong acids. तो अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं तो इससे क्या होता है? उनको हमें बहुत ही प्रिकॉशनरी, बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन से हमें उनको यूज़ करना होता है, अदरवाइज दे माइट प्रूव वेरी डेंजरस फॉर अस एंड दीज कैन बर्न अवर हैंड्स एंड क्लोथ्स. तो इसको हमें बहुत ही ज़्यादा केयर से हैंडल करना होता है, और इसको जनरली हम लेबोरेटरीज में वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं टू मेक देम डाइल्यूट, एंड सच एसिड्स दे आर नोन एज द डाइल्यूट एसिड्स. बिकॉज हम इसको पानी में क्यों डिसॉल्व करते हैं? उसको इसलिए डिसॉल्व करते हैं सो दैट दे बिकम लेस हार्मफुल फॉर अस. ओके, और जो ऐसे ही सच नेचुरल फॉर्म में होते हैं वो कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज मिनरल एसिड्स. So these are hydrochloric acid, sulfuric acid, and the nitric acid. These are the acids which we use in the laboratories to perform our experiments. So hydrochloric acid, what is its function? It is used for cleaning sink and bathrooms. मतलब apart from the laboratories, these are the general usage of these acids. Sulfuric acid, they are used for making storage batteries for vehicles and inverters.
and nitric acids, these are used by the goldsmith for cleaning gold. तो बच्चों अपार्ट फ्रॉम द लेबोरेटरीज, आप सोच रहे होंगे तो लेबोरेटरीज की बात कर रहे थे मैम और अभी यहाँ पर ही हमें जनरल बता रहे हैं. तो अपार्ट फ्रॉम द लेबोरेटरीज टेस्ट परफॉर्म करने के अलावा इनको हम घर पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट we should handle them with care and these should be in the dilute form, not in the concentrated form. Now let's have a look what are the organic acids. So these are the naturally occurring acids which are found in plants and animals and they are weak acids. मिनरल एसिड्स हमने क्या पढ़ा था, मिनरल एसिड्स ये मैनमेड एसिड्स होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिक एसिड्स, these are found naturally in plants and animals, और क्योंकि वो naturally मिलते हैं, so these are weak acids. What are the examples of organic acids? These are the acetic acid, formic acid, citric acid, lactic acid, tartaric acid, oxalic acid and ascorbic acid. और ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, इधर सब कुछ मेंशन है. लाइक आपको पता होगा लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, ओके, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है. फॉर्मिक एसिड जो है वो एंट की स्टिंग जो होती है, जो चींटी हमें काटती है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है. ओके, सो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स और ये कहाँ पर मिलते हैं वो सब इधर मेंशन्ड है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ग्रुप ऑफ एसिड्स. अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों की जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड जो मिनरल मैनमेड एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. तो यही उसकी कैटेगरी भी है. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग हो गए. ऑन द अदर हैंड जो ऑर्गेनिक हैं एसिटिक, फॉर्मिक, सिट्रिक, टार्टरिक एंड कार्बोनिक, ये हमारे वीक एसिड्स हैं. Now let's have a look what is acid rain. आपने जनरली टर्म सुना होगा acid rain. तो ये होता क्या है exactly? Let's study about this. So बच्चों, as the name indicates, so acid rain, it is the rain which contains a higher level of acid than normal. तो normal से ज़्यादा जब acid हमारा प्रेजेंट होता है रेन में तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं. अब होता क्या है कि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गैसेस रिलीज होते हैं, ये हम सबको पता है. लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब ये क्या होता है कि एयर में जाकर जब ये मिक्स होते हैं तो क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है नाइट्रस एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है कार्बोनिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड. और जब ये सब पानी में, इसमें रेन में डिसॉल्व होते हैं तो रेन वाटर को ज्यादा एसिडिक भी बना देते हैं, जिसको कि हम एसिड रेन कहते हैं. और इस एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जब ये आप इमेजिन करो जब एसिड बहुत ज्यादा रेन में प्रेजेंट होगा और वो रेन सब जगह फॉल हो रही है, लाइक दे आर फॉलिंग इन द रिवर्स, they are falling on the buildings, on plants, crops, everywhere the rain is falling. तो क्या होगा, जब एसिड ज्यादा प्रेजेंट होगा तो इन सब चीजों को डैमेज करेगा, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करेगा, प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, सबको खराब कर देगा. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों आपको जब आप देखोगे ताजमहल, उसका जो मार्बल है इट यूज्ड टू बी प्योर वाइट इन कलर, बट वहां पर इंडस्ट्रीज की वजह से वो धीरे धीरे जब वहां पर इसकी पॉल्यूटेंट्स रिलीज होने लगे एयर में और एयर बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई, और वो एसिडिक एयर जब रेन में मिक्स होती है तो वहां पर का जो रेनफॉल होती है वो एसिड रेन की तरह फॉल हुई और वो मॉन्यूमेंट ताजमहल जो है इट लूज इट ओरिजिनल कलर एंड इट बिकम्स लिटिल मोर येलोइश इन कलर. So this is the acid rain. Now let's see what we have in our next slide. Now let's study about bases. So what we have studied so far about the properties of bases, that they are bitter in taste, they are soapy in touch, they neutralize the acids to form a salt, and bases they turn red litmus to blue. ये हमने पढ़ा था ना. Now let's learn about some examples of bases. These are sodium hydroxide and potassium hydroxide and they are found in the soaps.
Magnesium hydroxide, it is found in milk of magnesia. Calcium hydroxide, it is found in lime water. And sodium hydrogen carbonate, it is found in baking soda. अच्छा बच्चों, आपको पता है कि टूथपेस्ट वी दैट वी यूज फॉर ब्रशिंग आवर टीथ, दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर. कैसे? Okay, let me tell you. Kids, that the food we eat is that it is converted into acid by the bacteria which is present in our mouth, and this acid it causes tooth decay. कहती है ना मम्मी कि कुछ भी मीठा खाने के बाद आप ब्रश कर लेना चाहिए, चॉकलेट खाने के बाद ब्रश करो. क्यों कहती है? क्योंकि उससे जो एसिड प्रेजेंट होता है उसमें उसका जो बैक्टीरिया है वो हमारे टीथ को जो है खराब कर देता है. और जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं for brushing and cleaning our teeth, it is basic in nature and it neutralizes the acid in our mouth and hence it prevents टूथ डीके. समझ में आया? तो वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, बैलेंस कर देता है, उसको बेसिक होता है क्योंकि वो नेचर में, और उससे हमारे टीथ खराब नहीं होते हैं. Now kids, apart from the acidic and the basic substances, there are some substances which are neither acidic and not basic in nature. These substances, they are known as the neutral substances, or because they are not acidic nor basic in nature, they do not change the color of any indicator. चाहे आप phenolphthalein ले लो, कोई भी आप लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज, कोई भी आप टेस्ट परफॉर्म करोगे, these neutral substances they will not change the color of any indicator. And the example of neutral substances are distilled water, sugar, common salt and glucose. Now let's see, what do you mean by neutralization? Neutralization सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिसपे एसिड, जो कि ना तो एसिड होते हैं और ना बेस होते हैं, और वो किसी भी इंडिकेटर के साथ अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, वो हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं. अच्छा बच्चों, अभी तक हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एसिड और बेसिस जो है वो केमिकली एकदम अपोजिट नेचर के होते हैं. ओके, तो एसिड को बेस के साथ मिक्स करोगे या फिर बेस को एसिड के साथ मिक्स करोगे तो उन दोनों का इफेक्ट जो है कैंसिल हो जाता है. ओके, तो इसको ही हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. सो व्हेन एन एसिड एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन suitable amount, then both the acidic and the basic nature of the substance it get destroyed, resulting in solution which is neither acidic nor basic in nature. तो जब हम इसको suitable amount में mix करते हैं तो हमारा एक neutral substance form हो जाता है. ओके, जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, तो उस टाइम पर सम हीट इट आल्सो इवॉल्व, और जो हमारा प्रोडक्ट बनकर आता है वो एक सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट और वाटर बनता है. ओके, कोई भी सॉल्ट बच्चों नहीं बनता है. जो सॉल्ट बनेगा इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन सा एसिड और कौन सा बेस को एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं. लाइक इफ आई मिक्स this hydrochloric acid with sodium hydroxide, then the product which is formed, the salt which is formed is the sodium chloride, and water is released. So in the neutralization reaction, heat is released and salt and water, they are the product of this reaction. एंड क्या सॉल्ट कौन सा बनेगा वो हमारा डिपेंड करता है कि हम कौन सा उसमें एसिड ले रहे हैं और कौन सा बेस ले रहे हैं. तो अभी तो इसकी बात हो गई. और अगर जो मैं बच्चों लेती हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड मैंने ले लिया, तो मेरा क्या सॉल्ट बनेगा? सॉल्ट मेरा बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, आपको समझ में आ गया ना कि हमारा सॉल्ट जो बनता है वो इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड और कौन से बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा रहे हैं. Now kids, let's perform an interesting activity to show the neutralization. तो इसमें मैं क्या करूंगी, मैंने एक बीकर लिया और उसको मैंने 1/4 फिल कर लिया विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, एंड नाउ आई टेक अ ड्रॉपर और उससे मैंने फिनॉल्फिथैलिन, इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल्फिथैलिन आई हैव
एडेड टू इट. अब आपको पता है ना कि फिनोल्फिथैलिन एसिड के साथ क्या करता है, इट रिमेन्स कलरलेस इन द एसिडिक सॉल्यूशन, वेयर एज फिनोल्फिथैलिन इट टर्न्स टू पिंक कलर विद द बेस. तो अभी मैंने ये एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर मैंने फिनोल्फिथैलिन की 2-3 ड्रॉप्स डाल दी. नाउ आई शेक इट वेल and what I see that there is no color change. Now I added the basic solution of the sodium hydroxide solution to this, ड्रॉप बाय ड्रॉप. अब मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो मैंने डालना स्टार्ट करा, और मैं इसको स्टर भी करती रहूंगी साथ साथ में. ओके, अब मैं जैसे जैसे इसमें ऐड कर रही हूँ, कब तक ऐड करती रहूंगी, जब तक मैं देखूंगी कि पिंक कलर इसके अंदर नहीं आ जाता. ओके, तो जैसे ही पिंक कलर आ जाएगा इसका मतलब कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो गया है. हाउ कैन आई से दैट कि इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, क्योंकि जब तक सोडियम इसका, जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट रहा, तब तक तो, जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके ऊपर, या आप कह सकते हो कि डोमिनेट करता रहा, तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड का इफेक्ट नहीं आया. लेकिन जैसे ही एक भी ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो उसने उसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और वो पिंक कलर का हो गया. ओके, अब अगर जो इसमें मैं एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालती हूँ, then it will again change into the colorless solution. ओके, और फिर से मैं एक और ड्रॉप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की डालती हूँ तो ये पिंक कलर का हो जाएगा. तो अगर जो मैं इसको ऐसे ही करती रहूंगी तो ये कलरलेस पिंक इस तरीके से ही होता रहेगा. एंड दिस शोज दैट हाउ न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, कि दोनों को जब हम एक सुटेबल अमाउंट में डालते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एक पॉइंट पर आके, ना तो वो एसिडिक रह जाता है ना वो बेसिक रह जाता है. ओके, सो आपको समझ में आ गया व्हाट द न्यूट्रलाइजेशन इज. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड सी how the neutralization it works in our everyday life. So how the neutralization takes place happens is helpful in indigestion. इंडाइजेशन क्या होता है बच्चों, जब हम कभी इंडाइजेशन हो सकता है कभी जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है. ओके, इसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा पेन, इरिटेशन, और मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी से हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है. ओके, अब इसको रिलीज करने के लिए क्या होता है, वी हैव टू टेक द एंट एसिड. एंट एसिड इज द एंटी एसिड. तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना पड़ता है, विच इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में बच्चों क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड विच इज वेरी मच सेफ टू यूज. ओके, और दूसरा एंट एसिड होता है हमारा बेकिंग सोडा, विच कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, नेक्स्ट टाइम आपको इंडाइजेशन होगा तो यू कैन टेक दीज एंट एसिड्स. नाउ एंट सिस्टिंग जब चींटी काट लेती है तो क्या होता है, चींटी के अंदर मैंने बताया था ना, चींटी की बाइट के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होती है. अब उस इरिटेशन को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर सकते हो आप उस जहाँ पर चींटी ने आपको काटा है वहां पर आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन रब कर सकते हो या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन लगा सकते हो, बिकॉज दीज आर बेसिक इन नेचर. ओके, एंड हाउ दिस न्यूट्रलाइजेशन इज इफेक्टिव इन द सॉइल ट्रीटमेंट. अच्छा, कभी कभी बच्चों क्या होता है कि सॉइल में कभी कभी हमारा बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, कभी हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है. तो इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक तो उसको हम उसके अंदर हम बेस ऐड, जैसे कि क्विक लाइम ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. और अगर जो कभी हमारी सॉइल बेसिक हो गई तो उसको हम उसके अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स ये सब डालकर उसको हम एसिडिक कर सकते हैं या फिर हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. ओके, नाउ एसिडिक फैक्ट्री बेस दे शुड आल्सो बी ट्रीटेड बाय बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज. ऐसा क्यों है बच्चों,
क्योंकि अगर जो हम उसके एसिड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, द एसिड्स विच इज प्रेजेंट इन देम इट विल किल द fish and other aquatic organisms which live in the water bodies. So these acidic wastes, factory waste, they should be neutralized before discharging into the water bodies. आपको अच्छा लगा ना ये everyday life neutralization how it takes place? Okay, now let's study about the salts. So what are salts, kids? A salt, it is a substance which is formed by the reaction of an acid and a base. ये अभी हमने पढ़ा था ना न्यूट्रलाइजेशन में कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वाटर फॉर्म होता है एंड अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड, और इसमें हमारी कुछ हीट भी रिलीज होती है. ओके जो बच्चा हमारा ये जो सॉल्ट फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, and the salt which is formed is the sodium chloride. So the salt which is formed, it consists of the two parts. The first part, it consists of the name of the base. Look, this is the sodium. So the first part, it consists of the name of the base, and the second part, it consists of the name of the acid, this chloride and hydrogen chloride. So it consists of the two parts. The first part is that of the base and the second part is that of the acid which is from which it is derived. Another example आप ले सकते हो, जैसे कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अगेन इट इज अ बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड इट इज द एसिड एंड द सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड इज द सोडियम सल्फेट. तो अगेन सोडियम आपका बेस हो गया और सल्फेट विच इज डिराइव फ्रॉम द एसिड. So from the sulfate is derived from the sulfuric. So वो second part हो गया. आपको समझ में आ गया बच्चों ये? Okay, now let's see that there are three types of salts. अब ये कौन कौन से होते हैं? The first one is the neutral salt, the second is the acidic salt, and the third category is that of the basic salts. So neutral salts, अभी तक तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा न्यूट्रल से क्या मतलब है, जिस जो कि ना कि एसिड है और ना कि बेस है. ओके सो व्हेन एन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, so it forms the neutral acid and it does not have any effect on the litmus paper. Example of the neutral salts is the sodium chloride. Acidic salt में आप नाम से पता लगा लो कि इसमें obviously strong acid होगा और weak base होगा, and it turns blue litmus to red because it is more acidic. हमने पढ़ा था ना litmus paper का टेस्ट. Okay, now example of the acidic salt is the ammonium chloride, and basic salts इसमें base strong होगा and the acid is the weak acid, and it turns, because it is a strong base, so it will turn the red litmus to blue, and the example of the basic salts is the sodium carbonate. Okay kids, जब भी आप एसिड और बेस को रिएक्ट करा रहे हो तो सॉल्ट बनता है. ओके तो आप हमेशा अपने माइंड में ये पॉइंट्स याद रखोगे कि द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे आर कॉल्ड एज द क्लोराइड्स, क्लोरिक से आप याद रखोगे क्लोराइड्स. द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे आर कॉल्ड एज द सल्फेट्स. The salts of nitric acid, they are called as the nitrates. The salt of carbonic acid, they are called as carbonates, and the salt of acetic acid, they are called as the acetates. अभी आप इन सब के एग्जांपल्स देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन इट इज रिएक्टिंग इट इज फॉर्म्ड, इट इज द सॉल्ट फॉर्मिंग इज द सोडियम क्लोराइड. अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का से सॉल्ट बन रहा है तो वो क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा. और अभी सल्फ्यूरिक से कोई भी सॉल्ट बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो वो क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा. नाइट्रिक एसिड से बनेगा तो नाइट्रेट बनेगा, और कार्बोनिक एसिड से बनेगा तो कार्बोनेट बनेगा. आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे. और ये तो बताइए, आपको भी मैंने बताया था कि सॉल्ट में जो है दो पार्ट होते हैं उसके नेम में. फर्स्ट पार्ट बेस का होता है और सेकेंड पार्ट एसिड का होता है. लेकिन अगर जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बन रहा है तो वो क्लोराइड होगा, सल्फ्यूरिक का बन रहा है तो सल्फेट होगा, नाइट्रिक का हो रहा है तो नाइट्रेट होगा, और कार्बोनेट का हो रहा है तो कार्बोनेट होगा. ओके सो that was the last part of the chapter and I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में क्या डिफरेंस है, उसको हम इंडिकेटर की हेल्प से कैसे डिटेक्ट करते हैं.
And with this, I finish my video and hope you all understand the chapter. And if there are any queries, you can always ask in the comment section. And yes, please don't forget to like, share, and subscribe. Remember, safety first, stay safe, stay healthy, take care.